Hello and welcome everyone. So this is Zamir Sheikh, Faculty of Chemistry from Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. So in this particular session, we're going to discuss some previous year questions uh, for 6S Chemistry, BSc third year, semester 6, which includes inorganic chemistry, organic chemistry and physical chemistry. You know all about the or your question paper, right? And hope your study is going good. uh, so I'm just focus on some important aspects and some important questions, okay? That will be very beneficial to you for your upcoming examination. So let's move on to your question paper pattern. And as per your university syllabus, that is Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati. So this is what the home page, particularly your BC part 3 semester 6 examination chemistry new. The maximum marks for this paper is 80. Your time allotted for this is 3 hours. So all questions are compulsory. All questions are compulsory, and question number 1 carries what the 8 marks. Okay, remaining all questions carry what the 12 marks. Okay, so we have two types of what question. एक रहेगा आपका 8 मार्क्स का, दूसरा रहेगा आपका 12 मार्क्स का. Whenever necessary you have to mention the diagrams, right? And write equations or questions, okay, equation basically. And you can use the scientific calculator. Okay, so ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा. So for the more updates, particularly in the chemistry, I have created the YouTube platform. Okay, and the name is for the YouTube platform is Chemistry for Society, right? So those who are not visited to this site, so go to the YouTube and just type Chemistry for Society. You will get the more updates regarding your chemistry examinations and chemistry notifications for jobs and etc. चलिए तो मूव हम करते हैं सबसे पहले. सो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? और इसमें आपको 4 फिल इन द ब्लैंक पूछे जाते हैं जो होते हैं हाफ मार्क के लिए, राइट? सो चलिए हम बात करते हैं इसमें. जस्ट अ मिनट, जस्ट टू चेंज द कलर. नाउ सी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? और फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है. हाँ, आपके पास कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर से, पहले 2 इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक के 2 और फिर फिजिकल के 2. इस तरह से आपको 6 चैप्टर्स है और 6 चैप्टर्स में आपके क्वेश्चंस कैसे जाते हैं वी विल डिस्कस दैट. This is one of the previous year question paper, okay, from the summer 2020 summer examinations of semester 6. As the charge on the central metal ion increases the stability of the complexes. Now see the question. अगर central metal atom, let's say example this is your complex, मैं यहाँ पे एक complex लिखता हूँ, ये वाला आपके पास एक complex है और यहाँ पे something charge दिया हुआ है. अगर इस metal atom की या इस मेटल है आपके पास, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन. अगर इस सेंट्रल मेटल आयन की साइज, राइट, दीज आर द डिफरेंट साइजेस, लेट्स एग्जाम्पल. अब अगर ये साइज क्या होती है आपकी, साइज और चार्ज ये दोनों समझो पहले, राइट? नाउ सी, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या बढ़ रहा है आपका. नाउ इन दिस केस योर साइज इज गोइंग टू इंक्रीजेस. नाउ साइज क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है. और मैं अगर ऐसा जाता हूँ यहाँ से तो आपका क्या हो रहा है, साइज़ क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ हो रही है. तो आपको ये समझ में आ गया साइज़ का इशू क्या होता है, राइट? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनके चार्जेस. लेट्स से एग्जांपल दिस इज़, यहाँ पे अगर मैंने लिखा हूँ तो ये अगर +1 है तो ये +2 है, ये अगर +3 है. सो साइज़ अगर बढ़ रही है तो चार्ज आपका क्या होना चाहिए, चार्ज मस्ट बी डिक्रीजेस. चार्ज क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज़ हो रहा है. यहाँ पे आपकी साइज़ कम हो रही है, राइट, छोटा छोटा होते जा रहा है, तो आपका चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज आपका बढ़ रहा है. ठीक है, चार्ज क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है. और आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम की साइज़ अगर चार्ज अगर आपका बढ़ता है, चार्ज बढ़ रहा है मतलब साइज़ कम हो रही है, तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए. जनरली जो छोटे वाले साइज़ के जो मेटल होते हैं वो लिगैंड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं. जो आपका लिगैंड रहेगा, लिगैंड मतलब क्या, ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर या तो लोन पेयर चाहिए या तो नेगेटिव चार्ज चाहिए. ठीक है,
So this ligand is strongly attracted to the small size metal atom, not to the bigger size. इसीलिए जैसे जैसे आपके मेटल का साइज और हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज अगर आपका बढ़ रहा है और साइज़ अगर आपकी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्स की क्या होती है, आपकी बढ़ती है। ओके, सेकेंड हम फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, एनर्जी विच इज़ एसोसिएटेड विथ, ठीक है। सेकेंड पे क्या है हमारा, एनर्जी विच इज़ एसोसिएटेड विथ ईच क्वांटम और फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू, यू नो द प्लैंक्स इक्वेशन, दैट इज डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू, बराबर है। सो मतलब एनर्जी जो होगी आपकी एक फोटोन की वो किस साथ प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। हाईएस्ट या फिर एनर्जी जो होती है, हम इसको और भी एक तरीका है हमारा इसको समझने का, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच क्वांटम और फोटोन, मतलब एच न्यू इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल, दिस इज व्हाट E1 एंड दिस इज व्हाट दी E2। या हम इसको ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं, इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या हो जाएगा, डेल ई। डेल ई का मतलब होता है E2 माइनस E1, या फिर हम इसको डेल ई यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट द डेल ई। ओके, नेक्स्ट। So next question, highest energy required dash 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 transitions in UV spectroscopy। you know that हमारे पास जो UV स्पेक्ट्रम होता है या ट्रांजिशन हमारे पास होते हैं, हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, दिस इज व्हाट सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज नॉन बॉन्डिंग, दिस इज व्हाट दी पाई स्टार एंड दिस इज व्हाट दी सिग्मा स्टार। नाउ दिस इज व्हाट द एनर्जी, ये क्या है आपका, ये जो लिखा हुआ है ये कौन है, आपका एनर्जी। अब हम यहाँ पे एक वो लगा सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल आपके सबसे दूर रहेंगे, इसका मतलब दिस वन, इसको सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी लगनी चाहिए, मतलब सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा लगनी चाहिए। और ऐसे वाले कौन से हो सकते हैं आपके, ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये वाला ट्रांजिशन हम देख सकते हैं। दैट मीन्स योर आंसर शुड बी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। सबसे कम अगर बोला है तो हम ये लिख सकते हैं N टू पाई स्टार, ओके, राइट। Now saturated calomel electrode, calomel electrode, this is comes from the electrochemist, which is generally used as a reference electrode। हम जनरली इसको as a reference electrode बोलकर इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, these are the 4 important questions which are asked for half marks, सिर्फ आपको हाफ मार्क के लिए ये पूछे गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको MCQ क्वेश्चंस होंगे, राइट, और MCQ क्वेश्चंस में आपको एक करेक्ट अल्टरनेटिव आपको देना होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये वन ऑप्शन इज अ करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आपका NMR के टॉपिक से आपका आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट गिव द सिंगलेट सिग्नल इन द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। क्या पता लगता है हमें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और क्या पता लगता है इसमें, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब कितने टाइप्स के हाइड्रोजन हैं और कैसे हाइड्रोजन से ये हम पता लगा सकते हैं बेस्ड ऑन द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट गिव द सिंगलेट, यानी कि ऐसे कौन सा कंपाउंड है जो आपको एक ही टाइप के हाइड्रोजन जिसमें नहीं है। लेट्स एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसकी, ईथेन की बात करते हैं, CH3 एंड CH3, बोथ हाइड्रोजन्स आर कनेक्टेड सेम फैशन, इसलिए अगर हम इसमें से लाइन ड्रॉ करते हैं तो यू विल गेट द सिमेट्रिक पैटर्न। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड आपका कितने सिग्नल आएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर ऑफ सिग्नल कितने रहेंगे, एक। और कैसे पता चला है हमने, इसमें सेट ऑफ हाइड्रोजन, कैसे सेट ऑफ हाइड्रोजन है, एक ही टाइप के हैं, तो जितने सेट ऑफ हाइड्रोजन, नाउ सी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्नल, ये हमेशा याद रखना आप, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स। सो ये अगर आप फॉलो करेंगे इसको तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, मतलब जितने नंबर ऑफ अलग अलग सेट्स के हाइड्रोजन रहेंगे उतने ही आपको सिग्नल मिलने चाहिए। जैसे पहले ऑप्शन में एक ही टाइप के हाइड्रोजन है तो एक ही आपको सिग्नल मिलना चाहिए, राइट। और हमको पूछा है नॉट गिव द सिंगलेट, सिंगलेट किस में नहीं मिलता है, इसका मतलब ए में तो मिल रहा है, वो ऑप्शन नहीं है। सेकंड पे आते हैं CH3O CH3, नाउ राइट डाउन द CH3O CH3, दिस इज CH3O CH3, मिथिल O मिथिल। सो अगर मैं बीच में से लाइन ड्रॉ करता हूँ थ्रू द ऑक्सीजन, सो मुझे ये पता चलता है कि A एंड दिस A बोथ आर सेम,
इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल एक ही मिलेगा क्योंकि एक ही सेट ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये भी सिंगलेट दे रहा है, इसका मतलब आपका बी भी ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट आते हैं अपन सी पे। सी कौन है आपका? सी है आपका एसीटोन। एसीटोन मीन्स CH3CO CH3। नाउ सी इन दिस कंपाउंड अगेन आई एम ड्राइंग द लाइन, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ए इधर है ए इधर है, दोनों सेम है तो एक ही सिग्नल मिलेगा क्योंकि एक ही सेट के प्रोटॉन है। इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, दिस 3 कंपाउंड हैविंग सिंगलेट, एक ही मिल रहा है, एक ही मतलब सिंगलेट। बट जो डी ऑप्शन दिया है आपको, लुक एट द डी नाउ, डी इज़ नॉट सेम। डी में क्या क्या दिया है? डी में एक CH3 है, फिर डी में एक CH2 है, फिर एक ऑक्सीजन है, फिर एक और CH2 है और फिर एक और CH3। अब अगर मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी थ्रू द ऑक्सीजन, कंपाउंड सिमेट्रिक हो गया ना, आधा उधर सेम है आधा इधर सेम है, लेकिन दिस ए दिस बी एंड दिस बी सब के सब ए हो सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब इस कंपाउंड में 2 टाइप के हाइड्रोजन है। देयर आर 2 सेट्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने सेट ऑफ हाइड्रोजन है? 2। इफ़ 2 सेट्स ऑफ हाइड्रोजन देन हाउ मेनी सिग्नल्स वी आर एक्सपेक्टेड? यहाँ में हमने लिखा हुआ है कि जितने सेट ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे उतने ही हमको NMR सिग्नल्स मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 सिग्नल्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका डी, राइट? ओके, सो मस्ट बी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ which of the following spectroscopy would determine the molecular weight of the compound? Very simple, okay? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका, मॉलिकुलर वेट किस टेक्निक से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं? सो मॉलिकुलर वेट इज रिलेटेड विद द मॉलिकुलर मास एंड वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक दैट इज कॉल्ड मॉलिकुलर वेट हम निकाल रहे हैं वहाँ पे, राइट? और मॉलिकुलर वेट कैसे निकाला जाता है? मास से, मास। एंड मास इसमें आपका कौन दिया हुआ है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री आपको दिया हुआ है। दैट मीन्स UV विजिबल इट इज़ रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, राइट? NMR रिलेटेड विद द हाइड्रोजन, IR रिलेटेड विद द फंक्शनल ग्रुप, और जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है विच डिटरमाइन द वेट, राइट? दैट इज़ मॉलिकुलर वेट। हम इससे क्या निकाल सकते हैं? मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, चले आते हैं नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब क्या है? सिडविक ने ये कंसेप्ट दिया था आपका, दैट इज़ कॉल्ड EAN। अब अकॉर्डिंग टू EAN क्या होता है कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स रहेगा, और कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है? मेटल होते हैं, लिगैंड्स होते हैं, ठीक है? जब हम इनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, मेटल के और लिगैंड के, क्या इलेक्ट्रॉन? वैलेंस। जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को मैच करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इफ़ दे आर कंपेरेबल विद द नोबल गैस, लेट्स एग्जांपल 18 है हमारे पास, 36 है हमारे पास, राइट? क्रिप्टॉन है 54 है हमारे पास, देन 84 है हमारे पास, राइट? ऐसे अगर नंबर 86 है हमारे पास, अगर ऐसे नंबर अगर है आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो देन दैट कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू कॉल्ड एज ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? NiCO4। नाउ राइट डाउन दी NiCO4, ठीक है? NiCO4 में आपका सेंट्रल मेटल एटम निकालो। सेंट्रल मेटल एटम आपका कौन रहेगा यहाँ पे? सेंट्रल मेटल एटम आपका निकेल है। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28, राइट? सो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? अगर हमको वैसे नहीं निकालना है तो हम डायरेक्टली 28 कर सकते हैं। आपके पास कितने कार्बोनाइल्स है? 4। एक कार्बोनाइल्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसका मतलब 2 और इंटू 4 कितना हो गया? 2 इंटू 4 हो गया 8। इनको मिला दो, 28 और 8 कितना होता है? 36। एंड 36 जो है आपका 36 जो नंबर आपका होता है, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द जेनॉन। किसका एटॉमिक नंबर है ये? जेनॉन का। इसका मतलब NiCO4 इज द स्टेबलिस्ट कॉम्प्लेक्स। सो हमारे पास कितने नंबर होते हैं? 18, 36, 54 एंड 86। ये नंबर ऐसे हैं जिनको हम नोबल गैस बोलते हैं, और इसलिए इस मॉलिक्यूल का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रहेगा वो रहेगा आपका 36। इन अनदर वे वी कैन ऑल्सो भी फाइंड आउट निकेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? निकेल होता है 3d64s2। सॉरी, निकेल कितना होता है? निकेल आपका हो जाएगा 3d84s2, बराबर है, प्लस आपके पास 4 CO कितने हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। सो 8 2 10, 10 और 8 18। हम ऐसा भी बता सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। बट अगर आपको पूछा ऐसे है तो आप 36 इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, फाइन। नाउ सी another question from the nuclear chemistry. Nuclear reaction in which 2 or more lighter nuclei. Now see, 2 or more lighter nuclei मतलब 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस, ठीक है?
मैं यहाँ पे इसको दिस इज़ व्हाट ए न्यूक्लियस एंड दिस इज़ व्हाट बी न्यूक्लियस। जब दो और उससे भी ज़्यादा न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होना मतलब दे मिक्स टुगेदर एंड दैट विल फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस। हेवियर न्यूक्लियस मतलब क्या बन गया आपका, दिस इज़ व्हाट ए बी आपका अगर बनता है, सो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन, दिस इज़ व्हाट फ्यूजन। सो हम ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ओके फाइन। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट डिफाइन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड उसको बोला जाता है ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनो एंड मेटालिक। ऑर्गेनो का मतलब हो गया इट इज़ रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इट इज़ रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मेटालिक का मतलब हो गया ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, राइट, दिस इज़ व्हाट इनऑर्गेनिक। इसका मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो कैसे रहेगी आपकी, वो इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन टू, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो बीच का जो है दैट इज़ कॉल्ड एज एन, मतलब दोनों को है इसके अंदर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कार्बन, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली हम क्या करते हैं, मेटल। सो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सो कंपाउंड हैविंग कार्बन मेटल बॉन्ड दैट इज़ कॉल्ड एज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, अब इसमें क्या होता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका मतलब मेटल्स हमेशा अपने पास क्या रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, और ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन दैट इज 2.5 इट विल बी माइनस। सो दिस कंपाउंड्स आर आयोनिक इन नेचर। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कैसे हो गए, आयोनिक हो गए, इसका मतलब हम उसको पोलर बोल सकते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव, राइट, दे आर व्हाट हाईली रिएक्टिव, इसीलिए ये कंपाउंड जनरली ऑक्सीजन और मॉइस्चर से हमको दूर रखना होता है, राइट। ये 2 चीज़ें हमको पता करनी है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमको पता है ग्रीनार्ड रीजन इज द बेस्ट एग्जांपल, वी कैन कॉल्ड एज RMgX। फिर यहाँ पे R के जगह पे अगर मैंने मिथिल ग्रुप ले लिया, राइट, इफ़ आई पुट मिथाइल हियर, सो ये बन गया मेरा Grignard region, right, and this is organometallic compound. Why? Because here this bond is basically carbon magnesium bond, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। This is called organometallic compound. ओके, और organometallic compound जो है सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज़ कपलिंग कांस्टेंट। नाउ कपलिंग कांस्टेंट आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको सिग्नल्स दिखते हैं। लेट्स एग्जांपल मैं एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ व्हाट 0 दैट इज़ बेसिकली स्टैंड फॉर TMS की वैल्यू है, और यहाँ पे कहीं आपको एक सिग्नल दिया है ऐसे वाला। ओके, अब ये जो सिग्नल है आपका, ये कितने लाइंस दिखते हैं आपको, दिस आर 2 लाइंस, राइट, और ये 2 लाइंस का जो डिस्टेंस है आपका दिया हुआ, दिस इज द डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज अ J। J का मतलब हो गया आपका सेपरेशन ऑफ द 2 लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। सो जो भी आपको सिग्नल आपको दिखता है उसका डिस्टेंस जो रहेगा वो होता है J। और कपलिंग कांस्टेंट मतलब है क्या चीज़, कपलिंग कांस्टेंट मतलब लेट्स से एग्जांपल मेरे पास ऐसे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 2 अलग अलग हैं। 2 कैसे हैं, मैं यहाँ पे X लिखता हूँ, यहाँ पे Y लिखता हूँ, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन लिए हैं यहाँ पे दीज आर डिफरेंट हाइड्रोजन, और दोनों की आई वैल्यू कितनी होती है, हाइड्रोजन की आई वैल्यू जनरल कितनी होती है, 1/2 होती है। अब क्या होता है कि दीज हाइड्रोजन्स आर इंटरेक्टेड टुगेदर, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द 2 नेबरिंग न्यूक्लिया। नेबरिंग का मतलब 3 बॉन्ड सेपरेशन वाले, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। अब ये जो कपलिंग होती है आपकी, कपलिंग मतलब इंटरेक्ट होना, राइट, और इंटरेक्ट होने की वजह से आपको लाइंस मिलते हैं, 2 लाइंस 4 लाइंस 3 लाइंस। ओके, और हमेशा कपलिंग किसके बीच में होती है, जो अलग अलग हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं के बीच में कपलिंग होगी आपकी, राइट। और कपलिंग को हम इंडिकेट करते हैं J से, ठीक है, और इसको मेजर किया जाता है किस में आपको, हर्ट्ज में। सो द कपलिंग कांस्टेंट इज नथिंग बट द इट इज़ द मेजर ऑफ फॉर द इंट्रैक्शन बिटवीन द नेबरिंग न्यूक्लियर। नेबरिंग न्यूक्लियर कैसे इंट्रैक्ट होते हैं वो हम जनरली निकाल सकते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड व्हाट द कपलिंग कांस्टेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, राइट। हमने शिफ्ट पढ़े हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एब्जॉर्प्शन, राइट। सो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है आपका, दैट्स कॉल्ड द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट नाउ, राइट, व्हाट इज दैट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट नाउ। अब हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट पता करने के लिए मैं आपको 4 एट ए टाइम आपको मैं शिफ्ट बता दूंगा, आपको कहीं क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स से ये मेरे पास है, दिस इज व्हाट द वेवलेंथ, ये कौन है आपका, दिस इज व्हाट द लैम्बडा मैक्स, ओके, इन नैनोमीटर, और यहाँ पे जो दिया है वो आपका है कौन, आपका एनर्जी, और इंटेंसिटी 1 कैसे, मैं इसको निकालता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे 4 चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं,
एक तो आपका एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी कम हो रहा है, और एक आपका वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ कम हो रहा है। नाउ सी, हमको जो पूछा है वो कौन है, आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब हो गया कि आपका जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है वो आपका शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाता है। किधर, आपका शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ना। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बेसिकली, कि यहाँ पे ये जो होता है, जैसे ये वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड बाथोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, और इसको समटाइम हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेड शिफ्ट, जब आपका वेवलेंथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, हिप्सो माने क्या होता है कि जहाँ पे आपका वेवलेंथ कम होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ना। ओके, एंड इट इज समटाइम आल्सो कॉल्ड एज ए ब्लू शिफ्ट। ओके, सो एंड देयर आर वेरियस एग्जांपल जहाँ पे आपका जैसे कॉन्जुगेशन निकल गया, यहाँ पे जैसे कॉन्जुगेशन आपका लग गया, और यहाँ पे इस केस में आपका कॉन्जुगेशन निकल गया, तो हम उसको भी बोल सकते हैं इन अदर टर्म्स। लेट्स एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया है, फिनॉल लिया है, राइट, या फिर मैंने यहाँ पे NH2 किया है, कॉन्जुगेशन आपका बढ़ गया, और मैंने इसको NH2 को क्या कर दिया, अभी NH3 प्लस कर दिया। नाउ सी, कॉन्जुगेशन आपका चला गया, ठीक है। सो कॉन्जुगेशन जब निकल जाता है, सो दैट विल बी डिक्रीजेस द वेवलेंथ, और जो वेवलेंथ आपकी कम होती है उसको बोला जाता है व्हाट इज दैट, वी कैन कॉल्ड एज ए हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ना। ठीक है, अब यहाँ पे और दो बचते हैं, एक होता है हाइपर, दिस इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का मतलब होता है जहाँ पे इंटेंसिटी आपकी बढ़ रही है, और एक होता है आपका हाइपो, जहाँ पे आपकी इंटेंसिटी क्या होती है, आपकी कम होती है। सो डोंट बी कन्फ्यूज विथ हिप्सो एंड हाइपो, दोनों में कम ही हो रहा है, बट हिप्सो में क्या होता है, आपका वेवलेंथ कम होता है, और हाइपो में आपका क्या होता है, इंटेंसिटी आपकी एब्जॉर्बेंस या इंटेंसिटी आपकी कम हो जाती है। ओके, दैट इट इज़ द basically the difference between hypo and hypso. Okay, now in physical chemistry there are two types of what reaction, exorganic reaction, या फिर हम उसको और तरीके से बोल सकते हैं कि एंडोर्जेनिक रिएक्शन, राइट, और एंडोर्जिक रिएक्शन, राइट। एंडोर्जिक रिएक्शन में एंडोर्जेनिक रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पे आपका एनर्जी का जो है कंसेप्ट हम वहाँ पे लगाते हैं, राइट। सो दो हमारे पास सिंपल से ग्राफ लग सकते हैं, ठीक है, जिस रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिस रिएक्शन में एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए एंडोर्गोनिक रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पे एंडोर्गोनिक चाहिए था वो, और एक्सॉर्गोनिक रिएक्शन का मतलब होता है जिस रिएक्शन में एनर्जी आपकी रिलीज होती है, जहाँ पे एनर्जी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। और जनरली ये जो ऐसे टाइप की जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन जनरली दे आर नॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दे आर नॉट व्हाट दी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जो एक्सॉर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं, एक्सॉर्गोनिक जिसको बोलते हैं अपन, राइट, एक्सॉर्गोनिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन दीज आर बेसिकली जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी जब रिलीज होती है तो दीज रिएक्शंस आर व्हाट दी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिमेंबर दिस वन। ओके, सो मेन चीज़ आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है आपकी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, द एनर्जी इज व्हाट दी रिलीज्ड, रिमेंबर दिस टू। ओके, सो आपको ये दोनों भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहाँ पे, सो रिमेंबर दिस वन। नाउ एक्सप्लेन द टर्म लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। नाउ सी, द टर्म लेबाइल का मतलब हो गया, लेबाइल मतलब वो होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो लिगैंड का एक्सचेंज बहुत फास्टली करते हैं, राइट। सो लेबाइल एंड व्हाट, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो और इनर्ट मतलब वो होने चाहिए जो कॉम्प्लेक्सेस जनरली लिगैंड को एक्सचेंज नहीं करते आसानी से। ओके, दिस टू आर द सिंपल डेफिनेशंस ऑफ व्हाट द लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ओके, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल आपको देने हैं तो हम कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव वेरियस एग्जांपल पर्टिकुलरली फॉर दिस कैटेगरी, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दे दूँगा। यहाँ पे अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस टू देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। कैसे, लेबाइल मतलब वो होना चाहिए जो अनस्टेबल होते हैं,
जिनमें रैपिड रिएक्शन होती है, राइट, और ऐसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड द लेबाइल। इनर्ट में ऐसा नहीं होता है। इनर्ट में जनरली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं, थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली दोनों स्टेबल होते हैं, और उनमें लिगैंड एक्सचेंज होना बहुत स्लो हो जाता है। ओके, दिस इज़ व्हाट द लेबाइल एंड द इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ओके, ये हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आपको उसके एग्जांपल चाहिए तो हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर लेबाइल कॉम्प्लेक्स यू कैन टेक टिटेनियम एक्वा कॉम्प्लेक्स, वैनेडियम एक्वा कॉम्प्लेक्स। ओके, नो, टिटेनियम एक्वा कॉम्प्लेक्स इज द एग्जांपल ऑफ लेबाइल। ओके, और मैंगनीज एक्वा कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हैं, ठीक है, ये भी इसमें जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई इन जनरल वे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये आपके इनर्ट होते हैं, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कुछ केसेस में ये आपके क्या होने चाहिए, दे आर लिवर्डली लेबाइल। ओके, और इन अदर टर्म्स अगर हम निकालेंगे तो D1 कैटेगरी लेबाइल, D2 कैटेगरी लेबाइल, D3 कैटेगरी लेबाइल, लेकिन एक्सेप्शन है आपका वैनेडियम 3+ के केस में। ओके, ये हम वहाँ पे पता लगा सकते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन आपका है कि हाउ डू द चार्ज एंड साइज ऑफ सेंट्रल एटम विच अफेक्ट द आयन लाइबिलिटी। मैंने आपको इसके पहले MCQ में आपको बताया कि साइज और चार्ज कैसे होता है। नाउ सी, दिस इज व्हाट द साइज। नाउ क्या हो रहा है आपका, साइज बढ़ रहा है फ्रॉम दिस टू दिस, क्या बढ़ रहा है आपका, साइज आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब साइज बढ़ रहा है तो चार्ज का क्या इफेक्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज +1, दिस इज +2 एंड दिस इज व्हाट दी +3। जब साइज अगर बढ़ रहा है तो चार्ज क्या हो रहा है, इधर चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है। इसका मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और जब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो क्या आपका क्या होना चाहिए, साइज आपका कम हो रहा है, लेकिन चार्ज आपका क्या हो रहा है, चार्ज आपका बढ़ रहा है। नाउ लेबिलिटी का मतलब होना चाहिए कि एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ द लेगेंड्स पर्टिकुलरली। जैसे जैसे वो छोटा होते जाएगा वैसे वैसे लेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, बराबर है। लेकिन जैसे जैसे साइज़ आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका क्या होना चाहिए, लेबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। सो साइज इज प्रोपोर्शनल टू लेबिलिटी, साइज प्रोपोर्शनल टू द लेबिलिटी। ओके, एंड चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेबिलिटी। चार्ज क्या रहेगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेबिलिटी। मतलब जितना आपका चार्ज बढ़ेगा उतना आपका लेबिलिटी कम होगी, जितना चार्ज आपका कम होगा उतनी लेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। ओके, नाउ दिस इज व्हाट द सिंपल वन कैन अप्लाई हियर कंसेप्ट। ओके, नाउ सी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो आपको बुक में भी दिया हुआ है, कैलोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, राइट। सो कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम क्या डिफरेंस यहाँ पे लगा सकते हैं और एक्चुअल में किस लिए दोनों टेक्निक यूज़ की जाती है वो अपन देखते हैं, राइट। सो हम बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट का ही हम फटाफट यूज़ करेंगे। सो सबसे पहला डिफरेंस जो होता है आपका, देखो बोथ आर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बोथ आर यूज टू डिटरमाइन समथिंग, राइट। सो अभी कैलोरीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला डिफरेंस आपका रहेगा मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर मतलब जो हम एक वेवलेंथ हमको चाहिए होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सो कैलोरीमीटर में दिस इज व्हाट कैलोरीमीटर, ओके, एंड दिस इज व्हाट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कैलोरीमीटर में जनरली मोनोक्रोमेटर में क्या होता है, एज ए फिल्टर यूज़ करते हैं उसको, और यहाँ पे हम एज ए क्या यूज़ करते हैं, एज ए प्रिज्म यूज़ करते हैं, राइट। स्पेक्ट्रल बैंड विड्थ जो होता है आपका ये हमेशा ब्रॉड होता है, दिस इज व्हाट दी ब्रॉड एंड दिस विल बी व्हाट दी नैरो बैंड, राइट। एक्यूरेसी जो होती है इसमें ये हमेशा कम होती है, बट इसमें आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा चीपर है एंड दिस विल बी अ कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट। अब जनरली हम लाइट सोर्स क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर, जनरली हम यूज़ करते हैं विजिबल लाइट इधर, और यहाँ पे क्या होता है, बियॉन्ड विजिबल भी हम जा सकते हैं। क्या हो सकता है आपका, बियॉन्ड विजिबल भी हम इसमें जनरली जा सकते हैं, राइट। सो कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है आपका, जो कलर सॉल्यूशंस होते हैं, कलर सॉल्यूशन जो होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है, लेट्स एग्जांपल दिस इज माय सॉल्यूशन, और जिसमें क्या है आपका कलर कॉम्प्लेक्स कोई लिया हुआ है, राइट। अब इसमें मैं अगर लाइट पास करता हूँ, सो दैट सॉल्यूशन हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द लाइट नाउ और पास थ्रू द सम मोनोक्रोमेटर, और जितना लाइट हमने एब्जॉर्ब किया है या ट्रांसमिट हुआ है उसको बेसिकली मेजर करना in terms of Beer's law, in terms of Lambert's law, that is the simple principle of what the colorimetry, okay.
सो ये हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। और इसका यूज़ क्या पे है, जैसे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कलर कर सकते हैं। सो कलरीमीटर स्टैंड फॉर दी कलर। एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है बेसिकली हम इसमें अलग अलग टाइप्स के यूज़ करते हैं, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पता लगाते हैं, कैसे टाइप का कंपाउंड है वो पता लगाते हैं। ओके, सो ऐसा हो सकता है इसमें। अगेन सेम क्वेश्चन, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कलरीमीटर। अब कलरीमीटर का आपको क्या पूछना है, आपको ब्लॉक डायग्राम निकालना है, यानी कि आपको इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है वो हमको वहाँ पे दिखाना है, राइट। और कलरीमीटर का सब लोगों ने उसका फ़ोटो देखा होगा कि कैसे होता है बेसिकली। सो जनरली मैं एक छोटा सा निकालूंगा। एक होता है आपका लाइट सोर्स, ठीक है, दिस इज़ लेट्स एग्जांपल, दिस इज़ व्हाट विच यूज टू यूज़ द लाइट। लाइट के थ्रू हम एक मोनोक्रोमेटर आपका होता है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट द मोनोक्रोमेटर। एंड थ्रू मोनोक्रोमेटर आपका यहाँ पे आपकी जो क्यूवेट होती है उस क्यूवेट के थ्रू वो पास हो जाएगा, दिस इज लेट्स एग्जांपल क्यूवेट। और यहाँ पे आपका सैंपल रखा हुआ है, दिस इज़ व्हाट द सैंपल, ओके, सॉरी क्यूवेट में सैंपल रखा हुआ है। एंड लेट्स से इसके बाद है आपका एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर के बाद आपका आउटपुट है। ओके, लेट्स से दिस इज़ व्हाट, एकदम सिंपल भी आप निकाल सकते हैं, राइट। लेट्स से दिस इज़ व्हाट द सैंपल होल्डर जिसको हमने क्यूवेट बोला है, राइट। एंड दिस इज मोनोक्रोमेटर, ओके, एंड दिस इज व्हाट द light source, okay. So this is what the simple diagram particularly for the colorimeter, okay. The next question, how what the copper 2 ion concentration is determined colorimetrically. Now see, in that questions particularly what the concentration of the copper in solution can be determined by using the colorimetric method. अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम बेसिकली एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हैं आपका कॉपर का, ओके, कॉपर का सॉल्यूशन रहेगा और उस कॉपर के सॉल्यूशन में लाइट का स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन कितना होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, वो कितना होगा उसके बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि आपका कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना रहेगा। और बेसिकली उसका एक बेस्ट एक एक्सपेरिमेंट भी आपको दिया गया है सिलेबस में, जिसमें कॉपर के अलग अलग सॉल्यूशंस रहेंगे और उसका हम कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टू दैट सेम क्वेश्चन आपका आ गया यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, एक्सप्लेन द बियर लैम्बर्ट्स लॉ। नाउ एवरीबडी नो अबाउट द बियर्स एंड द लैम्बर्ट्स लॉ। इन अकॉर्डिंग टू द बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पर्टिकुलरली दीज आर रिलेटेड विद द कॉन्सेंट्रेशन एंड वन कैन से आपका जो क्यूवेट होता है जिसमें हमने सैंपल कैविटी हमने डाली है, दिस इज लेट्स एग्जांपल, दिस इज व्हाट द क्यूवेट। और इस क्यूवेट में क्या है आपका सॉल्यूशन डाला हुआ है, और दिस इज व्हाट इंसिडेंट लाइट, लेट्स एग्जांपल दिस इज व्हाट, अगर हम इसको कंसिडर करेंगे दिस इज व्हाट I0 इज द इंसिडेंट लाइट, राइट। और यहाँ पे आपका जो होगा दिस इज कॉल्ड IT यानी कि ट्रांसमिटेड लाइट, ओके। अब ये जो मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे है दे आर अंडरगो द एब्जॉर्प्शन। बेसिकली होता क्या है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स आपके पास जो होते हैं ये क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो सिंपल सा एक लॉजिकल इक्वेशन क्या है आपका, I0 इज द इंसिडेंट लाइट, IT इज द ट्रांसमिटेड लाइट, हियर इज द कॉन्सेंट्रेशन एंड व्हाट द एप्सिलॉन। अब इन सब को एंड दिस इज व्हाट द लेंथ, ये क्या है आपका पाथ लेंथ दिया हुआ है, किसका, आपके क्यूवेट का आपके पाथ लेंथ दिया हुआ है। नाउ सी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पर्टिकुलरली ये क्या होता है कि दिस इज डिड गिव द रिलेशंस बिटवीन किसका किसका दिया इसने, एब्जॉर्बेंस का रिलेशन दिया है किसके साथ में, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, राइट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना है और एब्जॉर्बेंस कितना हो रहा है ये हमने रिलेशन निकाला हुआ है किसके थ्रू, अकॉर्डिंग टू द बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ द एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन एट द पाथ लेंथ, एंड इप्सिलॉन आपका जो रहेगा दैट इज व्हाट द कांस्टेंट रहेगा, ओके। सो दिस इज व्हाट द absorptivity is defined as the extent to which something chemical species that absorb the energy which is represented using the Greek letter that is called the epsilon, okay. This is what the simple equation.
Move on to the next one, effect of size of the ligand on the stability of the complexes. Now obvious बात है, the smaller size ligands generally they are attracted to the smaller size metal atom. larger size ligand जो होते हैं they are attracted with the larger size of the metal atom. Okay, so it also depend upon the size and the stability. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, डिस्कस द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. यू नो दैट हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन बोथ आर बायोमॉलिक्यूल्स, राइट, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. सो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज विल बाइंड विद द ऑक्सीजन एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को बाइंड करना और उसको ट्रांसफ़र करना, किधर, मसल की तरफ, राइट. सो लंग्स से ये मसल की तरफ जा रहा है और मसल में जाने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा. दैट मीन्स इन मसल इट विल फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड बैक टू इट विल बी टू द लंग्स. देखो कैसे हो रहा है, आपका लंग्स में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का, और मसल्स में किसका होता है, आपका CO2 का. सो ये ऐसा काम है किसका, हीमोग्लोबिन का. एंड फाइनली मायोग्लोबिन का काम है स्टोरेज करना और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको प्रोवाइड करना. सो मायोग्लोबिन इज़ द ऑक्सीजन स्टोरर वाइल हीमोग्लोबिन इज़ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर. दोनों का काम एक लगभग वही है, बट मायोग्लोबिन की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन को स्टोर करने की. ओके, रिमेंबर दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट. पर्टिकुलरली the next question particularly that's called the silicones. सिलिकॉन्स को कैसे बनाया जाता है एंड व्हाट आर द लीनियर सिलिकॉन्स. नाउ अब सिलिकॉन्स मतलब क्या, सिलिकॉन्स मतलब जहाँ पे SiO का कॉम्बिनेशन आपका आता है, राइट. सो एक सिंथेटिक पॉलीमर है सिलिकॉन, ओके, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की केमिस्ट्री देखी जाती है, दैट्स कॉल्ड द सिलिकॉन. ओके, एंड देर हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस पर्टिकुलरली फॉर द सिलिकॉन्स. सिलिकॉन के अलग अलग आपके पास क्लासिफिकेशंस भी होंगे, राइट, जैसे लीनियर है आपका, ब्रांच्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो सिलिकॉन्स आर बेसिकली द पॉलीमर्स. सिलिकॉन क्या एक टाइप के पॉलीमर है जिसको हम पॉली सिलोक्सेन भी बोल सकते हैं, यानी कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या, पॉली नंबर ऑफ क्या रहेंगे, मोर देन 4 नंबर ऑफ सिलिकॉन और ऑक्सीजन रहेंगे. इसका शॉर्ट में अगर हम स्ट्रक्चर निकालेंगे तो ये ऐसे वाला इसका स्ट्रक्चर रहेगा. लेट्स से दिस इज व्हाट आर, ओके, दिस इज कॉल्ड द सिलिकॉन यूनिट. ओके, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रहेगा. अब इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है. सो हमने किस टाइप का स्टार्टिंग मटेरियल लिया है उस हिसाब से बेसिकली हम क्या करा सकते हैं, उसको प्रिपेयर करा सकते हैं. अब इसके अलग अलग लीनियर चेन अगर आपको बनाना है, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर द लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर, क्या बनाना है आपको, लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर अगर आपको बनाना है तो इसका मतलब आपको लेना पड़ेगा R3SiCl. इफ़ आई टेक R3SiCl एंड अंडरगो द व्हाट दी हाइड्रोलिसिस, सो ये क्या बनेगा आपका, इट विल फॉर्म RSiRO देन Si. ऐसे टाइप का आपका जो लिंकेज रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए linear silicon polymer. This is called the linear silicon polymer. Okay, so simply हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं कॉपर पाउडर के साथ में at 570 Kelvin followed by the hydrolysis, so that will form the linear silicones. Okay, next है आपका give the method of preparation of CrCO6. Now how to prepare CrCO6 now. अब CrCO6 कैसे बनाते हैं, इसका एक सिंपल सा मेथड हमारे पास है. इट इज़ कार्बोनाइल्स, मेटल कार्बोनाइल. ओके, और मेटल कार्बोनाइल की जो जनरली हम रिएक्शन देखते हैं वो CrCl3 से बनाया जाता है इसको. ओके, आई विल शो द प्रिपरेशन ऑफ दिस वन. सो जनरली इसकी एक सिंपल से मेथड है हमारे पास. CrCl3 ले लिया हमने और इसकी रिएक्शन हमने फ्री कार्बोनाइल के साथ की है at any reducing agent, so that will form the CrCO6 now. Okay, and there are various other methods from which we can prepare the CrCO6. You know the structure of CrCO6, it is an octahedral structure. CO
So this is what CO, another CO, another CO, another CO, and this is what the CO1. So these are the questions particularly from the unit number 1, okay, that is the and unit number 2 from the inorganic chemistry. So another question, how organometallic compounds are classified? And basically organometallic compounds, you know, the in your textbook also given, the organometallic compounds are classified under various basis. Basically एक तो होता है आपका transition metal organic complexes, right? Or and another category is what depend upon your type of what carbonyls, वो भी हम निकाल सकते हैं उसमें metal carbonyls. Some are sigma bonded organometallic, some are pi bonded organometallic compounds, right? वो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है. The next question आपको पूछा गया आपकी PnCl2 reacts with ammonia, okay, in methanol and in presence of what the pyridine. So आपके पास PnCl2 है, it is a polymer that is called phosphonitrile, okay, PnCl2 just a minute.